الیکشن کمیشن آف انڈیا اخ وفد کر پگہ کشیر ہند دور جموں کشیر ہند سیاسی جماعتن ست کر ملاقات حالاتن ہند ہے جائزہ الیکشن کمیشن کے دورس پہ علاقائی جماعتن ہند رد عمل این سی تو پی ڈی پی کر الیکشن اعلان امید جموں کشیر ہیکہ اسمبلی الیکشن ستمبر تو نومبر درمیان سپدت الیکشن کمیشن کی دستاویز ست ملے اشار جموں کشیر مز اسمبلی الیکشن لڑنے خاطر سینئر پولیس افسرن دت استعفی 1999 بیچک کے پی ایس افسر ایس ایس پی موہن لالن دت استعفی آداب کشر خبر ہت بہ منزہ شاہ الیکشن کمیشن آف انڈیا اخ وفد کر پگہ کشیر ہند دور جموں کشیر سیاسی جماعتن ست ہیکہ ملاقات کرت امید چھ پگہ ہیکہ ای سی آئی جموں کشیر مز اسمبلی انتخاباتن ہند اعلان کرت ای سی آئی ہے حالاتن ہند تہ جائزہ الیکشن کمیشن آف انڈیا وفد کر پگہ کشیر ہند دور سیاسی جماعتن چھ امید کہ ای سی آئی کر الیکشن اعلان جموں کشمیر نیشنل کانفرنس ترجمان عمران نبی ڈارن کر نیوز 18 جے کے ایل ایچ ست ات متعلق کت بات اس سے پہلے بھی ہم ان کی ٹیم سے ملے ہیں اور جو ہمارے کنسرنز اور ایشوز تھے ہم نے ڈسکس کیے آج جس طریقے سے سپریم کورٹ کا ایک ڈیڈ لائن ہے 2 سپٹمبر سے پہلے الیکشن اناؤنس ہونے چاہیے اسی ضمن میں ہم اس کو لے رہے ہیں یہ ہم ویلکم کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو وہ پریس کانفرنس دیں گے اس میں الیکشنز کی اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے گی اور جو آپ کے دوسرے سوال کا ہماری ڈیلیگیشن بھی جائے گی انشاءاللہ وہ کل آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے کون کون لیڈرشپ جا رہی ہے بٹ یہ ہے کہ جیسا پہلے بھی جس طریقے سے پہلے بھی ہم نے وہاں پر لوگوں کے کنسرنز اور ایشوز کو ریز کیا ویسے ہی ہماری ڈیلیگیشن پھر سے وہی ایشوز ریز کرے گی اور بالخصوص اس چیز پہ جو ہے ہمارا امپیٹس رہے گا کہ جلد سے جلد ڈیٹس اناؤنس ہونی چاہیے اسمبلی الیکشنز کی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے سینئر رہنما عبدالقیوم بھٹن کور ای سی آئی کے دورس پہ رد عمل ظاہر عبدالقیومن وون کہ یل تہ ای سی آئی اس مدعو کرمت ہر وز تمن ست ملاقات کرمز یہ ہم آپ کو بتاتا چلوں کہ الیکشن کمیشنر نے جب بھی ہمیں کوئی دعوت دی جو یہ الیکٹورل پروسیس یہ کر رہے ہیں ہمارا جو ریپرزینٹیٹو ہر جگہ گیا ہر وقت انہوں نے وہاں پارٹیسپیٹ کیا ہمارے مشورے کے مطابق بہت جگہ ہمیں پول وغیرہ جو پولنگ بوتھ کا کوئی مسئلہ تھا وہ انہوں نے سنا ہم تو اس میں بالکل ان کے ساتھ ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ 5 سال کا عرصے میں اگر آپ کتنی بار آپ نے یہ پروسیس کیا پھر اس کے بعد 2 سال کے بعد اور آپ کو ڈیلیمیٹیشن جو بھی کرنا ہے ان ٹائم اگر یہ کریں گے پھر ساتھ ساتھ میں اگر یہ لوگ آج مطلب سچ میں مطلب پازیٹیولی جتنی ان کی یہاں پر ایفرٹ سے چل رہے لگتا تو ہے الیکشن ہو جائے گا لیکن جو الیکشن کمشنر کو کل چاہیے تھا ہمیں پوری امید ہے کہ اگر کل یہ کوئی اس معاملے میں پورا اپنا کوئی اشارہ دے دیں تاکہ یہ اچھی بات ہے کہ یہاں لوگ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے جس طرح انہوں نے پارلیمنٹ میں حصہ لیا اسی طرح وہ اسمبلی الیکشن میں بھی حصہ لے لیں گے اچھی بات ہے ہر ایک الیکشن ہونا چاہیے ہم کہتے ہیں کہ یہاں میونسپل الیکشن ہونے چاہیے یہاں اپنے پنچایت کے الیکشن ہونے چاہیے ہر ایک الیکشن ہونے چاہیے ہمارا اپنا کوئی ریپرزینٹیو ہے نہیں 2-3 بندے ہمارے گئے ہیں وہاں پر تو اس میں بھی ایک بندے کو اجازت نہیں ہے بولنے کی تو وہ کیا کر سکتے ہیں 540 یا 50 میں آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اسمبلی میں بولیں گے لوگوں کی ریپرزنٹیشن ہو جائے گی چھوٹے موٹے کام بھی ہو جائیں گے پھر بعد میں بڑے باتوں کی ہم لسٹ بتا دیں گے تو ہم پوری امید ہے اگر یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ ہم الیکشن کے لیے پرزور جو ہماری یہ اس وقت پروسیس آپ دیکھ رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اس کا یہی تو مقصد ہے ہم اس کے لیے پوری تیار ہے اور ہم لوگ جو ہماری پریزیڈنٹ صاحبہ کی طرف سے ہمارا جو یہ حکم ہے
कि हर तरफ से हमने जवाब देना और मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह। महकमा सयाहत जम्मू कश्मीर कर मरकजी वजीर सयाहत गजेंद्र सिंह शेखावत सत मुलाकात इजलास मज कमिश्नर सेक्रेटरी सयाहत याशमित कुल डायरेक्टर राजा याकूब तो दीगर अफसरान मौजूद। न्यूज़ 18 JKLH सत कर तिमो खास बातचीत। न्यूज़ 18 JKLH के साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म गजेंद्र सिंह शेखावत। बात करते हैं उनसे। सर, मीटिंग हुई आज आपकी, किस तरीके की मीटिंग थी, क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं? देखिए, मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ और अभिनंदन करना चाहता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म का और डायरेक्टरेट का, कि उन्होंने बहुत ही हॉलिस्टिक प्लानिंग फ्यूचर टूरिज्म के लिए किया है। और जिस तरह से भारत में टूरिज्म बढ़ने वाला है, कश्मीर में टूरिज्म बढ़ने वाला है, उनकी आवश्यकता को देखते हुए नए डेस्टिनेशन डेवलपमेंट पे काम करना शुरू किया है। वर्ल्ड बैंक की सहायता से आने वाले समय में जम्मू एंड कश्मीर में 8 नए डेस्टिनेशंस डेवलप किए जा सकें, उसकी संभावनाओं पर बहुत गति के साथ में काम कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि अगर सक्सेसफुली हम उनको कर पाते हैं तो आने वाले समय में श्रीनगर के अलावा या गुलमर्ग और पहलगाम के अलावा जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे नए डेस्टिनेशंस होंगे जो अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र बनेंगे। श्रीनगर पर दबाव कम होगा और उन डेस्टिनेशंस के माध्यम से हम यहाँ के टूरिज्म में ओवरऑल टूरिज्म इकोनॉमी और एक्सपीरियंस दोनों को बढ़ा पाएंगे। सर, रिलीजियस टूरिज्म की बात करते हैं हम, पिलग्रिम टूरिज्म की काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट रिलीजियस टूरिज्म, इट्स जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। सो यू सी, उसको लेके आपने देखा एक प्रसाद इनिशिएटिव भी स्टार्ट हुआ जिसके तहत कई सारे ऐसे मंदिर हैं, मॉस्क्स हैं जिनका रिवैम्प हुआ। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वदेश दर्शन 2 और प्रसाद, इन दोनों योजनाओं की, तीनों योजनाओं के माध्यम से इस दिशा में महत्वपूर्ण काम देश भर में हुआ और लगभग 5,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से इस तरह के टूरिज्म सर्किट्स जो हैं उनका निर्माण किया गया, जिनमें जम्मू एंड कश्मीर में भी 3 सर्किट थे। और मुझे लगता है कि उनके होने के बाद में जो हमारे तीर्थ यात्रा की यात्री जो हैं, जो स्पिरिचुअल टूरिज्म के उद्देश्य से आते हैं, उनको निश्चित रूप से जो है उनके अनुभव में वृद्धि हुई होगी और उनकी ओवरऑल सुविधा, उनकी यात्रा का अनुभव जो है वो एनहांस हुआ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की लेके अक्सर बात होती है सर। हमने देखा कि कई सारी ऐसी नई टूरिज्म प्लेसेस है, यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, डल को लेके भी। तो इसको लेके कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे आगे? देखिए, सरकार के साथ साथ में हमको सस्टेनेबिलिटी को लेकर के जो है टूरिस्ट में भी उस तरह के बिहेवियर चेंज की अपेक्षा है और उसको लेकर के अलग अलग तरह के साइनेजेस बने, लोगों को उसके लिए एजुकेट किया जाए, हमारे एंट्री पॉइंट्स पर उस तरह के लीफलेट्स उनको मिलें। इस सब के ऊपर भी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने राज्यों के टूरिस्ट डिपार्टमेंट्स को इस तरह के निर्देश भी जारी किए हैं, उन लोगों को इस तरह की गाइडलाइंस भी बनाने के लिए कहा है और मुझे लगता है कि उनके होने से धीरे धीरे ये बदलाव भी हमको देखने को मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब स्वच्छ भारत मिशन भारत में आया, उसके बाद में हमने देखा है कि बहुत बड़ी जागरूकता जो है इस दृष्टिकोण से इस स्तर पर बढ़ी है और उसका प्रभाव हमको डेस्टिनेशंस पे भी दिखाई देता है, लेकिन लगातार हमको इस पर काम करने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया सर। ये थे टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसको लेके भी काफ़ी काम चल रहा है। इन्होंने प्रसाद इनिशिएटिव को लेके भी बात की कि किस तरह से जो रिलीजियस टूरिज्म है यहाँ पे उस पर भी काम चल रहा है और आने वाले दिनों में एक होलिस्टिक डेवलपमेंट देखेंगे आप टूरिज्म सेक्टर में जम्मू एंड कश्मीर में। न्यूज़ 18 के लिए जहांगीर अजीज के साथ में सरोज कफील। श्री बुढ़ा अमरनाथ यात्रा के सिलसिलस मज पुंछ तो खास तौर मंडी तहसील हेडक्वार्टर्स मज आय सख्त हिफाजती इंतजाम कर। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ श्री बुढ़ा अमरनाथ मंदिर तो अत आस पास आय गश्त तो तलाशी मुहिम चलावन। सिक्योरिटी फोर्सों खसूसी चौकी ते कायम करमत। पुंछ जिले में श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर पुंछ के प्रवेश द्वार भिम्बर गली से लेकर पुंछ और पुंछ से लेकर मंडी तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्योंकि जो यात्रा का जत्था आज पहला जत्था पुंछ पहुंचेगा और कल वो पुंछ के श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में दर्शन करेगा, जिसको लेकर पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। खास करके मंडी में जो है सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है और सुरक्षा बल जो है गश्त लगा रहे हैं। इसके साथ ही जंगलों को खंगाल रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना न हो सके
यात्रियों को किसी प्रकार का कोई कष्ट न पहुंचे, इसको लेकर सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं। और आप देख सकते हैं किस प्रकार पूरी चौकी के साथ सुरक्षा बल, चाहे पुलिस हो, सीआरपी हो, सेना हो, पूरी मुस्तैदी के साथ जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं ताकि यात्रा जो है सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। और आज जो जत्था पुंछ पहुंचेगा, कल वो मंडी में दर्शन करेगा और उसको लेकर मंडी में भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। मनीष शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, पुंछ। जम्मू कश्मीर तारीखी कौसर नाग यात्रा आय जिले इंतजामी अफसरान हिंस मौजूदगी मज रवान करने यथ मज अकीदतमंदों बज तादाद मज शिरकत कर गोड़ ये यात्रा वादी कशीर पेठ नेरान, मगर तनाज पत आई यात्रा पतम्यो 10 वरियों पेठ रियासी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पेठ रवान करने। यात्रा जो आज यहाँ से प्रारंभ हो रही है, छड़ी मुबारक जो अभी यहाँ निकल रही है, आप देख रहे होंगे। इसके लिए जो सिक्योरिटी के इंतजाम ज़रूरी थे वो सारे किए गए हैं। पुलिस, आर्मी सबको रोपिन करके किया गया है। और जहाँ जहाँ कोई हमें था कि आशंका की जहाँ रोड की समस्या आ सकती है, वहाँ पर मैन एंड मशीनरी डिप्लॉयड है। लंगर व्यवस्था जगह जगह करी गई है और हर लंगर के साथ साथ एक मेडिकल टीम जो इनके साथ भी चलेगी वो भी साथ में है कि अगर किसी यात्री को कोई परेशानी आती है तो उसको भी कैटर करें। 14वीं यात्रा है कौसर नाग की और आज ये यात्रा जो है बेसिकली ये कल से शुरू हुई है। कल जो बारांदरी मंदिर लक्ष्मी नारायण जी का और अपने हनुमान जी का, वहाँ से ये यात्रा निकल के पहले महादेव मंदिर पे कल आई और महादेव मंदिर से बाजार, मुख्य बाजार से होती हुई कल इसका पड़ाव जो है रात को शिव मंदिर जो है नई बस्ती में रहा। आज ये यात्रा जो है आगे के लिए सुबह शुरू हुई है और ये आगे सलाल, अरनास, फिर मोहर, फिर सुंगड़ी और चसाना से होते हुए फिर ये कौसर नाग की तरफ जो है ये आगे जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी बड़े अच्छे कदम उठाए गए हैं। कल डीसी साहब भी इस यात्रा के साथ थे और उसके बाद जब मंदिर में हम लोग बैठे तो वहाँ भी उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी की तरफ से पूरे अरेंजमेंट किए गए हैं और ख़ास तौर पर जो तहसीलदार रियासी हैं उनको स्पेशल इसमें अपॉइंट किया गया है जो यात्रा में ऊपर तक कौसर नाग में जाएंगे और इस यात्रा को देखेंगे। इसके अलावा डीसी साहब ने ये भी कहा कि इस साल थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अगले साल से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कोशिश रहेगी कि ऊपर हम हेलीपैड बनवाएं और इस यात्रा को और ज्यादा कैसे बढ़ावा मिले इसकी तरफ पूरा ध्यान दिया जाए। राजौरी मज रूद से गो अख मकान मुनहदम, यम के वजह से खातून गई फौत गाँव गई हलाक। मकामी लुको इंतजामिया मुतासरा खानदान हिंस मदद करने अपील करमज। जो अपना गहना बंधा था, जेवरात था, जो कि मेरा नाम मोहम्मद रियाज है। मैं उस टाइम मौजूद नहीं था यहाँ पे, लेकिन बाकी ये मेरी वाइफ थी, बच्चे थे यहाँ पे मौजूद थे, मेरी भाभी थी, उसके बच्चे थे। तो कल सुबह 5-6 बजे जब क्लाउड बरस्ट हुआ ऊपर में, तो उस टाइम बहुत खौफनाक मंजर था। इन्होंने जब फ़ोन किया कि हम बिल्कुल ख़त्म होने वाले हैं 10 मिनट के बाद, तो फिर हम क्या कर सकते थे। हमने PCR कठुआ में फ़ोन किया था, चौकी अफसर साहब मौके पर पहुँचे थे, लेकिन वो बारिश रुकने के बाद वो पहुँचे थे मौके पे। तो उस टाइम बहुत खौफनाक मंजर था, बहुत नुकसान हुआ। 6-7 घर का कुछ टोटली रहा ही नहीं है सर, बिल्कुल। हम न्यूज़ 18 का बहुत शुक्रिया करते हैं, आप सबसे पहले पहुँचे हमारी ये देखभाल देखने के लिए। और आपके माध्यम से हम गवर्नमेंट इंतज़ामिया से, गवर्नर साहब से ये अपील करना चाहते हैं कि हमारी मदद की जाए और मौके पे आके हमारा ये देखा जाए, हाल इस मंजर का देखा जाए। कुछ बचा घर में खाने पीने? कुछ भी नहीं बचा सर, खाने पीने का कोई सामान बचा ही नहीं है। टोटल लास्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया सर, पूरा बह गया नीचे नदी में, कुछ दिखाई नहीं दे रहा सर। 6 तारीख को हुई बारिश ने जिला कठुआ के डूंगा इलाके में तबाही मचा दी है। तबाही का मंजर तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। और आपको बता दें कि बड़ी दुख की बात है कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी यहाँ पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचा। और तबाही का मंजर आपने देखा कि यहाँ पर लगभग 6 से 7-8 जो घर हैं वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर बादल फटने के कारण पहाड़ी का मलबा जो है इन घरों में घुसा, सामान जो है पूरी तरह से वो दरिया में चला गया और अब इनके पास खाने के लिए एक दाना जो है वो भी नहीं बचा है। उम्मीद की जा सकती है कि जल्द से जल्द प्रशासन इस ओर रुख करेगा और इन परिजनों को राहत देने की कोशिश करेगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। खबरें सिलसिलो जारी मगर तम अक वक्फ। वक्फ पच तुंद खर मकदम कंगन तो गुंड इलाकस मज त्रट पेन तो लैंड स्लाइडिंग सहित नुकसानुक जायज़ हेन खतर डिप्टी कमिश्नर गांदरबल शामबीरन अख मीटिंग तलब कर्मज।
میٹنگ منز کر مختلف محکموں شرکت لینڈ سلائڈنگ سے نقصان تو مستقبلس مز بچاؤ خاطر اقداماتن پہ آو تبادلہ خیال کرنے. بھارتی جنتا پارٹی زمینی سطحس پہ مضبوط کرنے خاطر ہر ممکن کوشش کران تو مختلف دیہاتن مز عوامی رابطہ پروگرام منعقد کرنے یوان. ات سلسلس مز آو باربگ امام صاحب علاقس مز بی جے پی ضلع صدر شوپیاں محمد یوسف بٹ کی طرف اخ عوامی پروگرام انعقاد کرنے. اب ہم آپ کی وساطت سے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم ہر جگہ جاتے ہیں. آج یہاں پہ پہلی بار آئے ہم باربگ میں. یہ امام صاحب کے ساتھ ہی جگہ ہے, ایک گاؤں ہے, اب تحصیل امام صاحب ہے. تو ہم نے یہاں پہ ورکرز کی میٹنگ رکھی اور کچھ لوگوں اور بھائیوں کی مشکلات بھی ہیں یہاں پہ بڑے پیمانے پہ کہ یہاں پہ نہیں پہنچ پائے افسران سے میں نے بات کی ابھی. بالکل میں لوگوں کے ساتھ جو لوگ ہیں لوگ ہی ہے سب کچھ. جو عوام ہے عوام کے ساتھ ہم پورے جڑے ہیں. انشاءاللہ پورے امید ہے یہ ہمارا ساتھ دیں گے, ہم بھی آگے بڑھیں گے, ان کی مسائل بھی حل ہو جائیں گے. 47 سے اگر یہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تو کیا بی جے پی کیا کر سکتی ہے آگے؟ جناب گولڈن کا جتنے مسائل آپ کو پتہ کتنے سکیم ہے یہ بی جے پی نہیں دیا, تو آگے بھی انشاءاللہ پورا امید ہے ہمیں. نریندر مودی صاحب نے 300 کروڑ مکان دوبارہ سینکشن کیا ہے. آپ دیکھو یہ غریب لوگ. اوم پور بڈگامک نوجوانوں کور علاقس مز منشیات لت ختم کرنے خاطر اخ اقدام. نوجوانوں کور ات علاقس مز ون پان اخ سپورٹس سٹیڈیم بناونچ پہل. نوجوانن ہند ون یل انتظامیہ کی طرف کھانا مدد ملے پتہ کر تمو پان گراؤنڈ بناونچ کام شروع. نے خود انیشیٹ کیا ہے کہ اب گراؤنڈ کا کام کیا جائے. اب لوگ بڑے آگے آ گئے ہیں. ہم پھر بھی ایڈمنسٹریشن سے التماس کرتے ہیں کہ ہمیں ساتھ دے. اس مقصد اتنا یہ ہے کہ 2018 سے ہم نے بہت کوشش کی, شاید وہ کوئی دفتر ہی نہیں ہے جہاں ہم نہیں گئے ہیں. اب ہم یوتھ نے خود ہی کچھ پیسے جمع کر کے ہم نے سوچا ہے کہ ہم اس گراؤنڈ کو خود ہی بنائیں گے. خود ہی کرنا انویسٹیشن رہے گی کہ آپ آ جاؤ, ہم سے تعاون کرو, کیونکہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. ہم جیب سے بھی اتنا نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ امپورہ میں جتنا بھی ڈرگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈرگ ایڈکشن کتنی ہو رہی ہے, تو واحد ذریعہ ہے اس کو روکنے کے لیے کہ ہمارے پاس کوئی گراؤنڈ ہونا چاہیے. باقی ہمارے پاس سپورٹس بہت ہے مگر گراؤنڈ کی بہت کمی ہے. 10-12 سال سے آپ خود بھی دیکھا, آپ نے بھی بہت ساری بائٹیں یہاں پہ لی تھی. آپ نے خود دیکھا یہاں پہ یہ گراؤنڈ نہیں بن رہا تھا. ایڈمنسٹریشن کے پاس بار بار یہ لوگ گئے, میں بھی گیا, میں بھی 10 بار گیا. ابھی تک اس کے کوئی فنڈ نہیں آئے. لاسٹ ٹائم ایک فنڈ آیا تھا اس کا 19 لاکھ کی کچھ آیا تھا, ٹینڈر نکلی تھی. تو اس ٹائم بھی ہم نے پھر یہ جب آئے تھے ہم نے کام سٹارٹ کیا تھا. اس میں پھر جو پیسے تھے وہ سارے ختم ہو گئے تھے. پھر ہم نے اور ریکویسٹ کی تھی ایڈمنسٹریشن سے کہ یہاں پہ کام سٹارٹ کریں, کیونکہ آپ خود دیکھ سکتے ہو کہ 3000 کی یہ جو یہاں پہ ہاؤسز بنے ہیں جتنے بھی یہاں پہ یہ ہے, تو آپ دیکھو یہاں پہ کتنا یوتھ ہے. ابھی یوتھ جتنی بھی اوم پورہ کی ہے, بہت ساری ٹیمز ہے یہاں پہ, 10-12 ٹیمز ہے. سب سے زیادہ کرکٹ یہاں پہ کھیلا جاتا تھا, والی بال یہاں پہ کھیلے جاتے. یہاں پہ ہمارا فٹ یوتھ کا ایک کلب ہے جس میں فٹ بال یہ کھیلتے رہتے ہیں. صبح یہ بیچارے جاتے ہیں یہاں سے لے کے یہ جاتے 4-5 کلومیٹر دوری پہ کھیلنے کے لیے. ہم نے خود ڈیسیجن لیا, ہمارے 2-3 محلے ادھر پرے آنگن ہے, ہمارا اوم پورہ, کھارپورہ مین مارکیٹ, ہم نے فنڈ جمع کیے. ہم نے ایک سے 100 1000 روپے 500 روپے لے کے ہم نے یہ ڈیسیجن لیا کہ ہم اس میں کام خود سٹارٹ کریں گے. ہم یہاں پہ اپنا گراؤنڈ خود ہم بنانے جا رہے ہیں. انشاءاللہ 2-3 دن میں ہم ادھر یہاں پہ ایک بڑا سا ٹورنامنٹ نکالیں گے. متصل ہے ہاؤسنگ کالونی کے ساتھ. وہاں کا جو بھی فضلہ اور جو پانی ہے وہ اس ایریا میں جمع ہو رہا تھا. یہاں کی شکایات یہ بھی آئی تھی کہ یہاں چند گائیں گھاس کھانے کے لیے آئیں اور وہ یہاں پھنس گئیں. تو پھر گاؤں والوں نے ان کو بچانے کے لیے سوچا کہ کیا راستہ نکالا جائے, اور راستہ یہ نکالا گیا کہ اس میں لیولنگ کی جائے. اور جو یہ دلدل نما یہاں پہ علاقہ بن چکا ہے اس ایریا میں, جس سے کہ یہاں کے بچے کھیلا کرتے تھے, تو پھر اجتماعی طور پہ یہ فیصلہ ہوا کہ چلو ٹھیک ہے, بے زبان جانوروں کی جان بچائی جائے. گایوں کو یہاں مطلب جو گائیں ہیں باقی بکریاں وغیرہ یہاں آتی ہیں, تو تاکہ ان کی جان ضائع نہ ہو جائے اور بچوں کو بھی کھیلنے کا موقع ملے, اور صاف و پاک ماحول میں یہاں پہ یہ. محکمہ زوالجی مائننگ کر آز TCI اشتراک ست وائن پامپور اخ مائننگ ول علاقس مز سوچھتا پکھواڑ پروگرام کے تحت شجرکاری مہم علاوہ صفائی پروگرامک تہ انعقاد. یا تحت وائن پہاڑک مائننگ علاقس مز شجرکاری تو صفائی مہم چلانا آئی. اویئرنیس پروگرام ہے جس میں ہماری جو آس پاس کی صفائی ہے, جو نہ صرف انڈیویجول لیول پہ جیسے ہم گھروں میں کرتے ہیں, بلکہ
कलेक्टिव लेवल पे जो हमारे वर्क स्पेसेस हैं, जैसे ऑफिसेज हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें ये उनका बेसिक एम है कि सफाई कितनी ज़रूरी है, इस पे अवेयरनेस करना है। इसी सिलसिले में हमने आज यहाँ पे हमारे लेसी हैं मेजर मिनरल के त्रोम्बो सीमेंट इंडस्ट्रीज़, इनके इश्तराक से जो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस में भी इसका है, तो इनके इश्तराक से हमने यहाँ पे ये स्वच्छता पखवाड़ा के सीरीज़ ऑफ डिफरेंट इवेंट्स किए, जिसमें एक अहम कंपोनेंट है एक पेड़ शहीदों के नाम, वो भी हमने यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव की। तो प्लांटेशन में हमारा यही है कि जो स्पेशली जो ये माइन अफेक्टेड एरियाज़ होते हैं, एफॉरेस्टेशन की कितनी ज़रूरत है, जो नेचुरल इम्बैलेंस होता है, क्लाइमेटिक चेंजेस होती हैं, उसमें कशीर च वंकस शदीद गर्मी तो तवील खुश्क मौसम यम खतर सलातुल इस्तिकाम एहतमाम करने यवान। सोपोर कस्बस मज आव रूद खतर खसूसी दुआ मंगने। ईदगाह इलाकस मज कोर लुको कहत निश बचने खतर नमाज इस्तिस्का अदा तो वारियन इलाकन मज आए नमाज इस्तिस्का अदा करने। खसूसी दुआ ब्रो आव खानका महल सोपोर पे ईदगाह इकबाल मार्केट सोपोर ताम रैली तिकड़ना। अल्लाह को मानने वालों का ये ईमान है और इस पर यकीन है कि जब भी मौसमी हालात इस तरह के होते हैं तो ये सब तब ही होता है जब अल्लाह बंदू के करतूतों पर, बंदू के गुनाहों पर नाराज हो जाता है और मौसम करवट बदलता है। आज आपको पता है कि बहुत देर हो गए कि वादी कश्मीर में अगर जुज़ वक्ती बारिश हो गई, लेकिन जो बारिश की ज़रूरत इस मौके पर होती है फसलों के लिए, मेवों के लिए, तो वो नहीं हो पा रही है। तो इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अक़दस है कि जब अल्लाह नाराज हो जाए और बारिश ना हो तो उस वक़्त नमाज इस्तिस्का सुन्नत तरीके पर अदा की जाती है, जो एक मुस्तहब नमाज है। और इसके साथ साथ है ये वादी कश्मीर जो है ये औलिया की सरजमीन है। यहाँ हजरत शाही हमदान रहमतुल्लाह अलैह ताला की जो अलम मुबारक है हमारे इस खानकाह मुअल्ला सोपोर में, हमारी पुरानी ये रिवायत रही है हजरत शाही हमदान के ज़माने से लेकर, जब भी मौसम में ऐसी कोई तब्दीली होती है जो मवाफिक के लोगों के मुवाफिक ना हो, तो उस वक़्त ये अलम जुलूस की सूरत में निकाली जाती है यहाँ इस मुकामी ये कदीम ईदगाह सोपोर तक। और यहाँ नमाज इस्तिस्का के बाद तौबा इस्तिगफार की मजलिस होती है और अल्लाह से मनाजात होती है और अल्लाह करम फरमाता है। और हमें आज भी इंशाअल्लाह ये उम्मीद है कि अल्लाह हम पर रहम फरमाए और इंशाअल्लाह बारिशों का नुज़ूल, बारिशों का सिलसिला फिर जारी हो जाए। बांडीपुरस मज मिनी सेक्रेटरीट पे स्पोर्ट्स स्टेडियम ताम आय अख रैली करना। स्वच्छता पखवाड़ा तहत आय यह रैली महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की तरफ मुनक़िद करना। रैली मज कर तलबुज अकि बज तादाद शिरकत। रैली DC बांडीपुरा शकील रहमान रथन रवान करूँ। अक्सर जो इसका मकसद है ये स्वच्छता का पखवाड़ा मीन्स हमारे समाज को कैसे हमने साफ रखना है। ये प्रोग्राम शुरू हुआ है 1 अगस्त से 15 अगस्त तक। तो पूरे समाज को मैसेज कन्वे करना है कि हमने अपने समाज को, अपने इलाके को कैसे साफ रखना है। इसकी शुरुआत हो जाएगी पहले बेसिक लेवल पे हमारे गांव से, फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट से, इसी तरह पूरा मैसेज जाएगा पूरे इंडिया को। असल मैसेज इसका ये है कि हमारे गांव से लेके पूरे नेशनल लेवल तक हमने अपने कंट्री को कैसे साफ सुथरा रखना है। तो आज हम ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये प्रोग्राम। तो आज की असाइनमेंट डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स को थी, तो इस सिलसिले में आज हमने बच्चों को इकट्ठा किया था। खबर मज फिलहाल मगर तुम न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर आदाब।